Of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम पूरे देश में ट्रेन में चलना, बड़ी बड़ी रैलीज करना, लोगों को प्रेरित करना, एक अपना ही वातावरण था। गुवाहाटी में हमारा एक सम्मेलन हुआ जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन था, और उस सम्मेलन में युवा शक्ति ने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया। हम लोग तंबुओं में रहे, सब एक साथ भोजन करते थे। इंदिरा गांधी भी बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा यूथ कांग्रेस हैज स्टोलन आवर थंडर। इट वाज द यूथ कांग्रेस टाइम। We all felt as friends, so anything anybody could very frankly speak, we discuss, and then a decision was taken. We used to hunt for talents and request talented people and youth leaders of respective states to accept the Youth Congress presidency. And most of them by their own rights were leaders. So these people tried to give a new dimension, a new concept to the youths of India. And the party which was literally considered to be thrown to the dustbin of history returned back in 80 with such massive mandate because of the effort of these young people. And Mrs. Gandhi acknowledged it during the first meeting of the Congress parliamentary meet in 1980. तो उस वक्त जो मोर्चा संभाला 77 और 79 के बीच में, वो यूथ कांग्रेस ने संभाला फील्ड का. वी वर रनिंग द ऑफिस, वी वर ऑर्गेनाइजिंग द मैडम इंदिरा जी's प्रोग्राम्स ऑल्सो, दो वी वर एज वाइज वेरी जूनियर, क्योंकि उस वक्त पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि 77 और 79 में हमने फील्ड में लड़ाई थी, तो इसलिए वो रिस्पेक्ट था. And we did not ask any senior what to do. Youth took decisions on our own. And later on it turned out to be that to do anything, the senior is to ask the youth, kya karna karo. We youth took the lead, and those people who were in the Youth Congress in those days took the lead at the national, took the lead at every level. And they are the people who are there in all the major positions today. So on one hand, we were looking at the local issues, we were looking at the national priorities, we were looking at the challenges, we were trying to imbibe a philosophy, a culture which was pan-Indian in thought and in commitment to counter the trend towards sectarianism, casteism or regionalism. And at the global level, to give that exposure to the issues which were relevant and the exposure to the younger leaders.
हम लोगों की तरफ से प्रयास इसी दिशा में चलता था कि ये जो राष्ट्रीय एकात्मता के सामने जो एक चुनौती है, उसको लेकर नौजवानों को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें और उसी काम को एक प्राथमिकता बनाकर तमाम कार्यक्रम अलग अलग तरीके से बनाकर उसमें हम लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करने की कोशिश करी। हम उसी समय सड़क पे उतार करके हमारे कार्यकर्ताओं को सरकार के जो जन विरुद्ध नीति हैं उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने का प्रयास की है। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में बूथ कमेटी बनाने का एक बड़ा योगदान हुआ था और एक भारी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हर बूथ में उनको आगे लाने के लिए हम लोग कोशिश की थी। मैंने जो यूथ कांग्रेस में सीखा था वो जो हमारे प्रिंसिपल्स थे कि युवाओं का धर्म क्या है, महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी पे हम कैसे आगे चल सकते हैं, देश भर में हर जाति, हर भ्रांति, हर भाषी युवाओं में एक दूसरे के लिए भाईचारा कैसे बढ़ सके। हमने इस देश के नवयुवानों को आओ भारत बनाए का नारा दिया कि हमारा भारत कैसा हो। राजीव जी का सपना क्या था, इस देश की कांग्रेस का सपना क्या था, ईच वन टीच वन। हमने पेड़ पौधे लगवाए, हमने सर्वधर्म सर्वभाषी लोगों को कैसे इकट्ठा करके भाईचारा का नारा दे रहा है। But I think the important thing is that everybody who passes through the student and the youth movement, gets ideologically and philosophically grounded. So therefore, it helps you to understand, imbibe, and internalize the core ideals on which this country stands. And the Indian National Congress is a very unique representation or a very unique microcosm of that larger ethos which is intrinsic to the idea of India. एक था हमारा एजिटेशनल पार्ट, हमें लोगों की आवाज एक आंदोलन की शक्ल देनी थी, लोगों की आवाज को, जो हमने प्रयास किया प्रांतीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर। दूसरा था कांग्रेस का एक काडर युवा कांग्रेस का बनाना, उसके लिए एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, तो मुख्तलिफ काडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। तीसरा था जो महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, जो उनका सपना था कि युवा कांग्रेस केवल आंदोलन ना करे, युवा कांग्रेस रचनात्मक गतिविधि भी करे, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करे। और चौथी बात थी इन तीनों के साथ एक नई मेंबरशिप ड्राइव चलाना। हमें सीखने को भी मिला किस तरीके से आम आदमी के साथ हमें हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, किस तरीके से आम आदमी की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होकर जो भी मदद हम कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति आखिरी में हम अगर देखें तो सेवा का एक माध्यम है। इस बात को महसूस करते थे कि कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस केवल धरना प्रदर्शन, राजनीतिक जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसमें उलझ करके रह गई है, और जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम थे सरकार, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेशों में सरकार हो, वहाँ पर जो फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचना चाहिए, जो हमारे कल्याणकारी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उसको हम किस तरीके से आम आदमी तक लेकर के जाएं, इसी उद्देश्य को, इसी विज़न को ध्यान में रखते हुए आम आदमी की हमने शुरुआत की।